Hello. Good evening, sir. Yeah, And good good evening. Good evening to evening. Amar, sir, Anurag, sir, Gaurav, sir. Very good evening, Good ma'am. evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Sir. Hello. Good evening, Amar sir. Good evening, Gaurav sir. And good evening, Anurag sir, for joining. And thank you for so much for joining. Good evening, everyone. Good evening, Parth. Hi all. Sir will be Good joining evening, the sir. webinar in a few. Good evening. Good evening. Good evening, sir. We will start with the webinar within 5 more minutes. We'll just wait for all the students to come. We'll just wait for 5 minutes more and then we can proceed. Sir, we'll start now. आप सबका आज के वेबिनार में स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय स्मार्ट गोल सेटिंग फॉर अ रिवॉर्डिंग करियर एंड प्रॉस्परस पर्सनल लाइफ यानी एक सफल करियर और संपन्न निजी जीवन के लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण है। सर्वप्रथम हम हमारे सम्मानित फाउंडर चेयरमैन सर अजित कुमार सर को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज वो यहाँ पे भी ज्वाइन नहीं कर पाए हमारे साथ, पर उनका ये इनिशिएटिव और सपोर्ट के कारण ही अर्थ केयर फाउंडेशन और प्रोजेक्ट उड़ान 2.0 आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। एंड थैंक यू सर। हम हमारी प्रस्तुत मेंटर्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अमर सर एंड अनुराग सर। And thank you so much for taking out such a precious time, sir. We are really happy to have all your presence with us. आज के विषय पर विचार विमर्श के लिए हमारे साथ प्रोजेक्ट उड़ान 2.0 के मेंटोर डॉक्टर गौरव कुमार हैं हमारे साथ। मेंटोर गौरव सर करियर कोच एंड एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को आज के वेबिनार का कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं गौरव सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। Yeah, thank you. Thank you very much, ma'am, for inviting and for giving this opportunity to be in front of the students. So, just a moment. Yeah. So I just want to take a second and welcome Mr. Amar sir. He's a retired IFS officer, so it's a really nice opportunity for all of the students to explore and ask questions and
make use of his experience. Thank you so much, sir, for being here with us. Thank you, Thank you. Mr. Amar sir. Thanks for being here. I look forward to learning from your expertise and taking some tips from your side as well during next an hour or so. So, Yeah, thank you. Students, as far as possible, I'll try to, mix up Hindi and English because normal हमारा जो way of conversation रहता है, being in a professional college, वो English में रहता है. तो मैं कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो हम हिंदी में बात करें ज्यादा ताकि मेरी बात सब तक पहुंच सके. Right? So, I hope you all are here because आपके मन में कोई शंका कोई डाउट है अपने करियर्स को लेकर, इसीलिए शायद आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है आज वाला जो इन पर्टिकुलर है वेबिनार है. तो आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाए और आपको एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिस पे चल के आपके करियर के जो भी प्रश्न हैं, जो भी दुविधाएं हैं, वो आप उनको दूर कर सको और एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर विजन आपका डेवलप हो सके. So with that, I'll now share my screen. Do I have the rights? Okay. Yes, sir. I'll just stop sharing my screen and then you can present your screen. I'll just do that. Maybe now you can share the screen. Right. So, well, I hope the screen is visible now. The title slide, a workshop on smart goal setting for a rewarding career and prosperous personal life. Is it visible to all? Could you kindly just confirm? Yes, sir. Okay, great. And now just let me check if the slides are moving. So, have we moved to the next slide? Common career dilemmas. Yes, it Okay, is great, all right. great. Right. So now we are good to go. So, well, students, हमारे सभी के मन में हमेशा एक दुविधा रहती है कि आगे क्या करना है. तो अच्छा, ये सेशन हम एज फार एज पॉसिबल थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे. तो जहां पे मैं आपसे कुछ सवाल करूं तो काइंडली मेरे को रिस्पॉन्ड कीजिएगा बिकॉज दैट वे वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो अभी जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनमें से ग्रेजुएशन लेवल के कितने स्टूडेंट्स हैं और स्कूल लेवल के कितने स्टूडेंट्स हैं? कुछ तो बता सकता है मुझे? स्कूल लेवल के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? सर ग्रेजुएशन सर. Graduation, okay. Others? Do we have people from school also? 10 plus 1, 10 plus 2? Yes? I am Pooja. सर मैं भी स्कूल में हूँ, अभी 12th में. Very good, very good. So I got it. So we have a mixed blend of students from schools as well as from the graduation. Now we all have this dilemma कि यार आगे क्या करना है. जब हम 10th में होते हैं तो सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है कि मेरे को क्या सब्जेक्ट्स रखने हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, क्या करना है आगे. वंस यू आर इन +2, आपने जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट की, अब आगे कौन सा कॉलेज लेना है, क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास. और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके बाद अब आगे ग्रेजुएशन के बाद आगे अपना करियर कैसे सिलेक्ट करना है. तो हम सभी की लाइफ में ये करियर डिलेमास जो हैं ये आते ही रहते हैं जब तक आप ये समझो कि आप बहुत ज्यादा सेटल नहीं हो जाते तब तक ये डिलेमास चलते रहेंगे. राइट. So now as you see on your screen now, we all have different options in front of us, right? So but this decision of a career choice has to be ours. Which way we want to go, what we want to do,
राइट, ये डिसीजन हमारा होना चाहिए। और आज की जो हमारी वर्कशॉप है उसका टाइटल ये है कि ये रिवार्डिंग करियर भी हो और ये एक प्रॉस्परस पर्सनल लाइफ भी हो, यानी कि एक खुशी वाली लाइफ और एक अच्छा करियर, दोनों चीजें हमें मिले। अब ऐसा संभव कैसे होगा? तो देखो, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आई मीन, अगर कोई आदमी सपोज कोई बैंक में है या कोई इवन टीचिंग में है या किसी भी जॉब में है, आप उससे पूछो सुबह 9 बजे तैयार होकर वो घर से निकलता है, पूछो कहाँ जा रहे हो, तो जनरली जवाब जो मिलता है वो ये मिलता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, राइट? बट व्हेन यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू से समबडी हु इज अ स्पोर्ट्समैन, उससे पूछो सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहा हो, कहेगा मैं खेलने जा रहा हूँ। अब किसी सिंगर से पूछो कहाँ जा रहा हो, कहेगा मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। किसी आर्टिस्ट से पूछो वो कहाँ जा रहा हो, कहेगा मैं शूट करने जा रहा हूँ। राइट, सो यू सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। जब तक हम अपने करियर को एक काम समझ के करेंगे, इट मींस समवेयर डाउन द लाइन वी आर probably not that happy, we are not that connected with it, right? So once we get connected to our job, right, हमने सभी ने ये लाइन सुना होगा कि हमको अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, राइट? ये बड़ा एक कॉमन सा स्टेटमेंट है कि अगर पैशन को प्रोफेशन बना लोगे तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी, right? So there's a very famous quote that choose a job you love and you will never have to work a day in your life. आप ऐसा काम चुनो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिससे आप you start falling in love with that kind of work, and then you will never say that I have to go for work. You will start enjoying every moment of it, and the life will become such a wonderful, blissful life. But the question, million dollar question is how to identify, right? कि हमें बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि मुझे एक्चुअल में अच्छा क्या लगता है और मैं करना क्या चाहता हूं। और आज के वेबिनार में, आज की इस वर्कशॉप में हम इसी प्रश्न का समाधान करने वाले हैं कि हमें अच्छा क्या लगता है और कैसे उसको फाइंड आउट करना है, राइट? सो बिफोर चूजिंग एनी करियर, आई से यू हैव टू गो फॉर 3 P's. What are those 3 P's? The passion, personality and possibility, right? पैशन, जो काम करने का मेरा मन करता है, अगर मैं उस डायरेक्शन को अपना करियर बना लूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई लव टू प्ले, इफ आई मेक स्पोर्ट्स एज अ करियर, इफ आई लव टू पेंट, आई कैन चूज being artist as a career. If I love to play with mathematics, then probably finance, accounting, banking, those kind of professions could be there. Similarly, अगर मुझे साइंस में मजा आता है, so then I can go for engineering as well as the medical line is there. So this passion has to be connected to your career. और दूसरा है personality. I mean, what हर इंडिविजुअल एक अलग इंडिविजुअल है, तो अगर हमारा पर्सनालिटी हमारा करियर को चूज करने में हमें हेल्प करेगा, तो अगेन वी विल नॉट हैव अ डिलेमा, विल नॉट हैव a situation where we'll feel that okay, I'm going for work. That kind of problem will not be there. And third, the foremost is the possibility. I'll not say the foremost, but certainly it's an equally important criteria. ऐसा कोई करियर भी नहीं चूज करना जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज की कमी हो। वैसे तो मतलब इट इज लिटिल रॉन्ग टू से कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है और उसमें है। अपॉर्चुनिटीज तो हर करियर में है और लगभग उसी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ही नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स भी होते हैं वहां पे, बट स्टिल देयर इज स्लाइटली अनबैलेंस्ड इन स्पेशली इन आवर सोसाइटी। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतना है कि हमारे यहाँ थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, नीट के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपीयर किया। उसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग देखो तो वहां पे भी लाखों स्टूडेंट्स हैं। तो थोड़ा सा एक इम्बैलेंस तो है कि किसी साइड पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं और किसी साइड पे थोड़े कंपैरेटिवली कम लोग जा रहे हैं। लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटीज तो सभी जगह होती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि किस फील्ड में ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम इन 3 P's को अलाइन कर सके तो देन दिस विल बी अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ रिवार्डिंग करियर। अब अगेन ये करना कैसे है, इसके ऊपर ही हम आज बात करने वाले हैं। ये एक स्लाइड मैंने रखी है, इसके ऊपर मैं थोड़ा बाद में आता हूं। नाउ देयर वाज अ टाइम जब टीचर्स स्कूल में बच्चों से कहा करते थे
कि आप सभी बराबर हो, आप सभी एक जैसे हो, राइट? देयर वाज अ टाइम जब हम ये कहते थे कि बच्चा तो एक कोरा कागज है, वो जैसा उसको ढाल देंगे वो वैसा ढल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये स्टेटमेंट्स गलत हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट्स शायद उतनी सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने साथ कुछ इनेट टैलेंट्स लेकर आया है, राइट? So people are not born as blank sheets. Students are, I mean, even if we talk of the little kids, I do not consider that they are actually blank sheets. We all are unique. We all are like these QR codes. हमें स्कैन करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे अंदर असल में क्या वो इनेट टैलेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैलेंट्स। पहला टैलेंट वो होता है जो हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड, जिसको हम बोलते हैं ना कि ही इज गॉड गिफ्टेड, लेकिन उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और दूसरा टैलेंट वो होता है जो मैन मेड टैलेंट है, जो हम अपनी प्रैक्टिस के साथ बनाते हैं। तो जो टैलेंट हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड, जिसको हम कह सकते हैं, जो टैलेंट गॉड गिफ्टेड है, उसको पॉलिश करने में एफर्ट कम लगता है। लेकिन वही अगर हम एक नया टैलेंट अपने अंदर बनाना चाहें तो उसमें टाइम, उसमें एनर्जी, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। और आज का टॉपिक स्मार्ट गोल सेटिंग के ऊपर है। तो स्मार्टनेस का मतलब तो यही है कि कम से कम एफर्ट्स लेकर हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालनी है। ये आई मीन जिंदगी का सिद्धांत भी है। आप, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो इंजीनियरिंग में हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी भी यही कहती है कि कैसे हम अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें विद मिनिमम ऑफ इनपुट। तो कम से कम एफर्ट लगाकर कैसे हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें। तो इसके लिए हमें अपना ये क्यूआर कोड स्कैन करना है कि हमारे अंदर वो इनबिल्ट टैलेंट कौन सा है, जिसको अगर हम पॉलिश करके अपने करियर में कन्वर्ट कर सकें तो लाइफ बहुत इजी, बहुत बढ़िया हो सकती है। So we all need to know what is our talent. So now this is my question for you guys. I mean, just talk to yourself for next 60 seconds. आपका अपना टैलेंट क्या है, और मैं उसको चैट बॉक्स में लिखा हुआ देखना चाहूंगा। I would like to see this in the chat box. Please enter. What do you think is your talent? Just write about it briefly. ये कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, प्लीज इस चैट बॉक्स में लिखिए। We have 60 seconds. Somebody might be very good at playing guitar, somebody might be very good at playing music, somebody might be very good at sports, somebody might be very good at accounts, maths. Okay, so I'm getting the answers. Reading, painting, very good. Yes. I'm waiting for a few more. Political science, wonderful. Right. So the idea is हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो अगर हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो हम वो पता भी करेंगे। आज ही पता करेंगे, इसी सेशन में पता करेंगे, राइट? So how can we identify what are the talents that we have? तो इसके लिए ये 5 स्टेप मेथडोलॉजी मैं कहता हूं कि आप इसको अडॉप्ट करो। The first step is observe. Observation is the key in life. Believe me, if you want to succeed, you have to be a very good observer. Not just of your surroundings, but at the moment when I'm talking of talent identification, it is about the on self. अपने आप को भी ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप अपना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी की हेल्प ले रहे हैं तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा, लेकिन अगर आप ये खुद कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आपके अंदर आपको क्या चीज करने में मजा आता है, आपको क्या चीज करने में एफर्ट कम लगता है, क्या चीज करने में आप खुशी महसूस करते हो।
या क्या चीज करने में आपको बर्डन महसूस नहीं होता, राइट? सो दैट विल बी द फर्स्ट हिंट which will take you towards your talent identification. Now the next stage is assess what is the level of capability in that domain that you have found. जो चीजें आपने अपने अंदर ऑब्जर्व करी हैं कि ये मेरे अंदर हैं, अब आपने उसको असेस करना है। और क्या ये आप लोग एंट्री कर रहे हैं ना? अच्छा चलिए ना। Somebody's microphone is on. रुपेश भैया का नाम लिख लीजिए। Somebody's microphone is on. Could you kindly mute it, please? Yeah. So once you have observed, you have assessed, now expose it to the surroundings, expose it to the environment, expose it to the society, right? And then start inspiring yourself. Yeah. Look, this exercise is basically done with the help of a career coach. आप किसी को भी जिसको भी अपना मेंटर मानते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका कोई अच्छा टीचर हो सकता है, वो आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, या वो कोई प्रोफेशनल करियर कोच हो सकता है। तो ideally these 5 steps will be followed by that mentor, that coach, to help you identify your talent. But if you are doing it on your own, अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो भी ये अपने ऊपर ये 5 स्टेप लगाकर आप अपना वो टैलेंट जो है वो अनअर्थ कर सकते हैं, वो सामने लेकर आ सकते हैं कि दिस इज व्हाट माय टैलेंट इज। एंड इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वॉन। अब रिमेनिंग हाफ आगे हम जीत लेंगे। नाउ So, yes. sorry to interrupt you. I just noticed that our senior mentors, Uday sir, JP Sinha sir, have joined. So I just wanted to welcome them. Thank you, sir, for joining. Ashok sir has also joined from all the way from Dublin. Thank you so much, sir, for taking out the time. That's wonderful. Thank you, mentors, for sparing your invaluable time to be here. And I look forward to learning from your expertise as well. I mean, please feel free to interrupt at any point during the presentation, or we can have the interaction part later on with you. As far as students are concerned, you are absolutely free to interrupt me anytime. जब भी आपको लगे कि आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ क्लैरिटी चाहिए, आप उसी पॉइंट पे मेरे को रोकिए। लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना कि मैं बाद में पूछूंगा, आप बीच में ही इंटरप्ट कीजिए, तभी हम उस क्वेश्चन का ऑन द स्पॉट ही डिस्कशन करेंगे। हालांकि लास्ट में हमने एक क्वेरीज का सेशन अलग से रखा है, लेकिन वो जनरल क्वेरीज हो सकता है होंगी। तो अगर आपको ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई बात करनी है तो आप मुझे वहीं इंटरप्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल द एस्टीम्ड गेस्ट्स। Thank you. So all of us, while making career selection, we many a times end up making some mistakes. I'm not saying that all of us make the mistakes, but many of us do make some mistakes in career selection, and later on we end up doing some rectification. We end up doing some corrections into those choices that we have made. But अगर हम शुरू में ही इनिशियल स्टेज पे ही इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखें तो शायद ये मिस्टेक्स ना हो। तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं? लेट अस सी। द फर्स्ट वन वी ऑल टेंड टू डू इज वी फॉलो द ट्रेंड। हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने नॉन मेडिकल क्यों रखा है, तो जी आजकल सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैंने भी नॉन मेडिकल रख लिया। अच्छा, आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्यों चूज करी है? सभी लोग कंप्यूटर साइंस चूज कर रहे हैं, सभी को वहां पे जॉब्स मिल रही हैं, तो मैंने भी कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन ले लिया, विदाउट इवन एनालाइजिंग कि वेदर आई एम मेड फॉर दैट, क्या मैं उसके लिए फिट भी हूं या नहीं हूं। ये सोचे बिना ही मैंने एक ट्रेंड को फॉलो कर लिया और अपना वो करियर सिलेक्ट कर लिया। सो दिस इज द टॉप मोस्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स they do make in their career. That is why I have kept it the biggest the circle, because this is the biggest mistake we all make. Now then the geographical biases कि हाँ जी मेरे को तो जी घर से दूर नहीं जाना, मेरे घर के पास यही कॉलेज है, यही स्कूल है, मेरे को यहीं पे पढ़ना है, या मेरे को फलां जगह पे ही पढ़ना है तो मुझे वहां पे ये वाला कॉलेज मिल रहा है, ये वाला करियर मिल रहा है, तो मैं इसलिए चला जाऊंगा। This is again, I believe, a big mistake that we commit. Imitating others, especially peers. I mean, many a time, I'm right now talking from Punjab, and in our part,
every second kid is going to Canada without even knowing why they are going over there. Just because my cousin is there, my friend is there, he is earning good dollars, so I should also go there, right? Likewise, I mean, if I ask some of my students in the classroom कि आपने मैकेनिकल क्यों चूज किया है, तो हाँ जी मेरे मासी के बेटे ने मैकेनिकल करी थी, उसकी जॉब लग गई, अच्छा सेटल है, तो इसलिए मैं भी मैकेनिकल कर रहा हूँ. तो वी आर इमिटेटिंग अदर्स, खास करके अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर बाय पीपल को, उनको हम इमिटेट कर रहे हैं. तो अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू लीड अस एनीवेयर. देन समटाइम्स ग्लैमर, क्रिज्मा, कनाडा में पता नहीं वहां पे क्या है, वहां पे बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी गुड, देयर इज अ ग्लैमर एसोसिएटेड विद इट. You'll see in northern part people also go to Mumbai and Bangalore. There is some glamour associated with those locations कि वहां पे जाके यार पता नहीं क्या मिलना है, या इस पर्टिकुलर करियर में पता नहीं कितना पैसा है, कितना ग्रोथ है. तो वो जो ग्लैमर है वो हमें बहुत बार करियर सिलेक्शन में हमारा एक क्राइटेरिया बन जाता है. और finally, advice from unreliable and wrong sources. किसी से भी पूछ लेते हैं, उसने जो कह दिया उसके पीछे चल पड़ते हैं, राइट? मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमेशा ये जो 5 स्टेप आप करोगे ये हमेशा आपको गलत रास्ते पर ही लेके जाएंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है करियर को चूज करने का. दिस इज नॉट द वे अ करियर शुड बी सिलेक्टेड. Right? A career should be selected based on certain methodology, based on your own analysis, based on the 3 P's that we talked about, right? This is not the way. If we are choosing any of these 5 methods and we are going blindly for that, then life is certainly going to be little difficult, if not much, right? So, अब जब करियर आगे थोड़ा 1-2 स्लाइड और आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम वो चूज करते हैं, लेकिन उससे पहले जब भी हम किसी भी करियर में पड़ गए हैं, कोई भी हमने अपना पाथ सिलेक्ट कर लिया है, अब उस पाथ में चलते वक्त कैसे अपना फोकस बनाकर रखना है, राइट? तो everything is important to us, right? So our family, our surroundings, our friends, society, everything is important, right? But there have to be some of your top priorities. You need to identify that these are my top priorities and stay away from the distraction. Keep everything else aside, right? So once you know your priorities, everything else will become secondary, and whatever you are doing, you will I find hardly any reason why you should not succeed. तो अभी जो मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे ये बात करी कि these are the 5 serious mistakes in career selection, तो असल में करियर सिलेक्ट करना कैसे चाहिए, तो उसके लिए जो पहला स्टेप है, I suggest that is do your SWOT analysis, right? So this S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threats. हमारी स्ट्रेंथ क्या है, राइट? तो ये मैं शुरू से ही बात करते आ रहा हूं, जो हमारा इनेट टैलेंट है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको बहुत कम एफर्ट लगाकर हम पॉलिश कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर हम करियर बनाएंगे तो पहली चीज मेहनत कम लगेगी, दूसरा हम उस करियर को एंजॉय करेंगे, और जब हम करियर को एंजॉय करेंगे तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी हैप्पी रहेंगे, बिकॉज वी विल बी एबल टू स्पेंड sufficient time with our personal life also. तो जो हमारा टाइटल है आज का कि we have to choose a career which is going to give us rewards on career front and which also makes our personal life as prosperous one. तो दोनों ही चीजें मेरे रडार पे हैं, सिर्फ करियर की बात नहीं है यहाँ पे. पर्सनल लाइफ मैं रादर उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ. करियर इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनल लाइफ भी है. तो दोनों ही जगह पे हमारा सक्सेसफुल होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्ट्रेंथ्स पे अगर हम अपनी काम करेंगे तो
हमें बहुत कम एफर्ट लगाकर अपना करियर बना सकते हैं और उस करियर को एंजॉय भी कर सकते हैं और उसके बाद अपना पर्सनल लाइफ पे भी हम अपनी अटेंशन जो है वो फोकस कर सकते हैं। दूसरा है वीकनेस। नाउ इफ यू नो दैट सपोज समबडी नोज दैट आई मीन आई एम फिजिकली लिटिल वीक, little fragile, so if still I want to make a career in sports or I want to make a career in say athletics, I will have to put in lot of effort. तो वो वीकनेस मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। उसी तरह जैसे कि मैंने अभी कहा था कि लोग आजकल बिना सोचे समझे कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे को कंप्यूटर साइंस का बीटेक करना है बिना अपना एनालिसिस किए। Now if you are not a logical thinker, कई स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रैम बड़ा अच्छा करते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्रैम नहीं कर सकते, राइट, मेमोराइज नहीं कर सकते। तो अगर आप चीजों को मेमोराइज करते हैं, अगर आप चीजों को क्रैम करते हैं, तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस लाइन मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं मानता, बिकॉज वहां पे हर चीज हमें लॉजिकली सोचनी। तो अगर आप उस लाइन में पड़ जाओगे तो यू विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग डे इन एंड डे आउट, राइट। तो आपको अपना एनालिसिस करना है कि मेरी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस को या तो मेरे को वो उस करियर में ही ना जाऊं, लेकिन अगर जाना चाहता हूं तो मुझे बहुत सारा एफर्ट लगा के अपनी उस वीकनेस को ओवरकम भी करना है। और तीसरा है अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किस एरिया में है, तो उसको अगर हम देखकर अपना करियर चूज करेंगे तो ये भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। थ्रेट्स की मैं बात नहीं करूंगा अभी, थ्रेट्स को मैं एक डिफरेंट वर्ड के साथ इसको संबोधित करूंगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर दैट, जस्ट वेट फॉर इट फॉर अ मोमेंट। नाउ इफ यू लुक एट दिस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, दे आर द इंटरनल टू अस। ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, इसका सोल्यूशन हमारे ही पास है। ऑन द अदर हैंड, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दे आर एक्सटर्नल टू अस। तो इसको जो कंट्रोल कर रहा है ये बाहर की दुनिया कर रही है। मार्केट में किस चीज की अपॉर्चुनिटी है ये बाहर की दुनिया बता रही है, ये हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं है। तो हमारे पास ज्यादा कंट्रोल हमारी अपनी ट्रेट्स का है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी का है। इसलिए हमें इन एस और डब्ल्यू पे ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ओ एंड टी, दे आर स्लाइटली नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। Likewise, the strength and opportunities, they are the positives. Strength हमारे पॉजिटिव हैं, अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में है वो पॉजिटिव्स हैं। ऑन द अदर हैंड, जो वीकनेस और थ्रेट्स हैं, लोग कहते हैं ये नेगेटिव है। मैं इसको नेगेटिव नहीं कहता, मैं कहता हूं कि वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव्स। अच्छा, मुझे सभी स्टूडेंट से मेरा एक सवाल है, अगर मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, और मैं किसी करियर में जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना चाहिए? यस और नो? यस सर। यस। एनीबडी एल्स? कोई ऐसा जो कहे कि नहीं? आई थिंक यू ऑल विल अग्री विद मी दैट हमें अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़े। लेकिन यस सर। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं। मैं कहता हूं अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्गर करना आसान है वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के मुकाबले। यू गॉट माई पॉइंट? इफ आई एम ऑलरेडी गुड एट समथिंग, I can work on it to become best on it. On the other hand, if I am not so good on something, I will first have to reach to the level of goodness and then I have to reach to the level of excellence. So there are two stages in between. फिर से समझो इस बात को। सपोज स्ट्रेंथ मेरा है, मेरा गुड पार्ट है, मुझे अचीव करना है एक्सीलेंस, तो मुझे गुड से एक्सीलेंस में जाना, उसमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, या जो चीज मेरी वीकनेस है उसको पहले मुझे गुड बनाना पड़ेगा और गुड से फिर आगे एक्सीलेंस पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर ही ज्यादा काम करें, तो मुझे लगता है हमें अपना करियर सिलेक्ट करने में, करियर बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। तो ये जो मैं टी वर्ड की बात कर रहा था, थ्रेट, मैं इसको थ्रेट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये हमारे लिए चैलेंज है। तो जो भी ऐसी चीज
जो आपको लगता है कि ये आपके रास्ते में एक बाधा है, ये आपके रास्ते में एक बैरियर है, तो हमें उसको थ्रेट नहीं मानना है, हमें उसको चैलेंज मानना है और उस चैलेंज को हमें ओवरकम करना है। क्यों? बिकॉज़ वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू पॉजिटिव, राइट? तो ये आपके सामने एक शीट रखी हुई है। मैंने जब हमने ये लेक्चर प्लान किया था तो मैंने कहा था कि आप सभी कुछ 2-3 अलग कलर्स के पेन्स और कॉपी वगैरह लेकर आइएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड सा है, तो अभी तो नहीं लिखेंगे, बट मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी के ऊपर ये 4 कॉलम अभी जरूर बनाएं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज, राइट? जस्ट मेक दिस 4 कॉलम्स ऑन योर नोटबुक्स। और आज शाम को वेबिनार खत्म होने के बाद आराम से अपने रूम में अकेले बैठकर आई मीन जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करनी है सिर्फ, राइट? एंड एंटर दीज 4 एंटर सम वर्ड्स इनटू दीज 4 कॉलम्स, राइट? अच्छा चलो, बिफोर वी मूव फर्दर मैं 1 मिनट ये स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं। आई एम कमिंग टू द मेन स्क्रीन सो दैट आई कैन सी यू ऑल गाइस। अच्छा, कोई ये ऋषिता, ऋषिता आप स्टूडेंट हैं? अनम्यूट जी कीजिए सर। अपने आप को। जी अच्छा सर। ऋषिता, टेल मी आप दुनिया में सबसे ज्यादा किसको जानते हैं? जी आप सर, इस दुनिया पेरेंट्स। में सबसे ज्यादा किसको अच्छी तरह से जानते हैं? कोई पेरेंट्स। एक नाम लेना चाहेंगे? पेरेंट्स, वेरी गुड, शाबाश। और कौन है? ये रामविलास रजक, आप भी स्टूडेंट हैं रामविलास? यस सर। हाँ रामविलास, आप बताएंगे मुझे, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से किसको जानते हैं? अपने फैमिली को। अपनी फैमिली को, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कोई और? मैं सभी के नाम नहीं देख पा रहा, कोई और स्टूडेंट? सर। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए आप किसको जानते हैं? सर मदर्स को सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। कोई और? अच्छा चलो, जिन्होंने पेरेंट्स और मदर्स कहा, आई रियली अप्रिशिएट यू, यू ऑल कैन गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन योर बैक। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ इतना वेल कनेक्टेड हैं, हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है और आई सल्यूट यू फॉर दिस आंसर। बट लेट मी टेल यू, जो भी आपकी एज रहे, 12, 15, 16, 18 साल, आप अपने पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा उतने साल से ही जानते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं जानते। और उस उतने सालों में भी अगर आप देखो, आप पेरेंट्स के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? दिन में 2 घंटे, 3 घंटे। नाउ डू यू थिंक, अब मुझे इस सवाल का दोबारा जवाब दीजिए, डू यू थिंक आप अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जानते हैं? आप सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? घर में तो सर बहुत कम रहते हैं, बाहर में ही रहते हैं। आप सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? सर। हाँ जी, अंजना, यस, फ्रेंड्स के साथ सर। फ्रेंड्स के साथ, ओके। जी सर। सर पेरेंट्स। मुझे तो ये लगता है कि आप सबसे ज्यादा समय अपने खुद के साथ बिताते हैं, यस और नो? जी सर। यस सर। Do you think you know somebody else more than you know yourself? क्या No, आपको sir. लगता है कि जितना आप खुद को जानते हैं उसका 10% भी किसी और को जानते हैं? डू यू थिंक सो? नो सर। जितना आप खुद को जानते हैं, 10% तो बहुत बड़ा नंबर शायद मैंने बोल दिया, उसका 5% भी आप किसी और को नहीं जानते हैं। सच्चाई तो ये है कि आप सबसे ज्यादा खुद को जानते हैं, इससे ज्यादा आप किसी को नहीं जानते हैं। और हमें इसी चीज का फायदा उठाना है कि हम अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जैसा कि आप में से किसी ने भी नहीं बताया कि मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं, और रियल लाइफ में भी हम यही करते हैं, हम इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो मैंने आपको 4 कॉलम बनाने को कहा है, ये उसी चीज का एक टेस्ट है। आप अपने आप को कितना जानते हैं, लेट अस सी ऑन दिस। इसलिए आज शाम को 1 घंटा अकेले रूम में बैठ के किसी से बात नहीं करनी है, अपने आप से बात करनी है। और इस 4 कॉलम में जितना कुछ आप
समझते हो फिट बैठता है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में नजर आती हैं, या जो भी चैलेंजेस आपको लाइफ में या अपने करियर में नजर आ रहे हैं, उन सभी के बारे में लिखिए, राइट। और आई एम आई मीन गिविंग यू एन ओपन इनविटेशन। इस सेशन के बाद मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी मैडम आपसे शेयर कर देंगे, तो आप में से कोई भी अगर चाहे तो यू कैन जस्ट अप्रोच मी एंड आई कैन वर्क विद यू ऑन दीज 4 पैरामीटर्स वन ऑन वन। मैं आपके साथ काम करूंगा। आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट, रेस्ट एश्योर्ड, राइट। तो आई विल हेल्प यू टू यूटिलाइज दीज 4 एस्पेक्ट्स टू आइडेंटिफाई अ करियर फॉर योरसेल्फ। बट ये 4 चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, ये कोई और आपके बिहाफ पे नहीं करेगा। खास करके एस एंड डब्ल्यू, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये आपको मैं भी शायद बता सकता हूं, लेकिन एस और डब्ल्यू ये आपको ही लिखना है, ये आपके बिहाफ पे कोई और नहीं लिख सकता, राइट। ओके, सो नाउ दिस SWOT analysis slide is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So next, now once you have done this SWOT analysis, जब आपने ये SWOT analysis कर लिया, अब अगला स्टेप है हमें अपने लिए एक स्मार्ट गोल सेट करना है। Now what is this SMART? I think you all would have heard it at some point of time in your career. This SMART is actually an acronym, where S stands for specific, M for measurable, A for attainable, R for realistic and relevant, and T is the time bound. देखो, गोल सेटिंग जो है ये एक हैबिट होना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे 15 साल बाद कहाँ पहुंचना है, या मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, या आई मीन ये लॉन्ग टर्म तो चलो गोल होना ही चाहिए, लेकिन वो तब हो पाएगा अगर गोल सेटिंग हमारी जिंदगी का एक हैबिट बनेगा। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी चीज जब आपको बड़ी चीज चाहिए तो उसके लिए पहले एक छोटी चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, छोटे छोटे स्टेप्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब बड़ी चीज पे परफेक्शन आएगी। सो बिफोर वी मूव फर्दर, एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। In fact, I'll show you 2 videos over here. मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिए कि ये ईगल वाली स्लाइड विजिबल है? जी सर। Okay, great. So I'm just playing this small video. सर मछली उठाएगा सर? राइट, सो आई थिंक आप सभी ने ये कभी ना कभी व्हाट्सएप पे अपने देखा होगा। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया से ही उठाते हैं हम लोग भी, तो कभी ना कभी आपने ये वीडियो पहले भी शायद देखा होगा। नाउ द क्रस्ट बिहाइंड द स्टोरी इज कि कुछ भी अच्छा रिजल्ट लेने से पहले उसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, चाहे वो कुछ भी हो। इवन इफ वी आर टॉकिंग ऑफ गोल सेटिंग, तो अगर हम बड़ा गोल, मान लो अगर कोई कहता है कि मेरे को एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आज वो शायद +2 में है, वो अच्छा डॉक्टर कब बनने वाला है? शायद आज से 15 साल बाद। वहां तक पहुंचने के लिए वो जो उसने गोल डिसाइड किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए गोल सेटिंग भी एक हैबिट होना चाहिए। छोटे छोटे गोल सेट होने चाहिए, और वो गोल बड़े क्लियर कट, बड़े आई मीन टू एब्सोल्युटली टू द पॉइंट होने चाहिए। आपको सभी को याद होगा महाभारत का वो किस्सा, जब द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को कहा था कि वो ट्री के ऊपर जो पक्षी बैठा था उसकी आंख में निशाना लगाना है। तो किसी को पक्षी के पैर दिखते थे, किसी को पक्षी के पर दिखते थे, किसी को पेड़ की टहनी दिखती थी, लेकिन सिर्फ अर्जुन ही थे जिनको वो पक्षी की आंख दिखती थी, और सिर्फ अर्जुन ही थे जो उसको भेद पाए थे, सिर्फ अर्जुन ही थे जो उसको निशाना लगा पाए थे। तो जब तक हमें वो टारगेट, वो गोल बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर नजर नहीं आएगा, तब तक उसको अचीव करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट।
तो वो गोल जो है वो कैसे नजर आएगा, उसके लिए ये मेथडोलॉजी जो स्मार्ट गोल सेटिंग की है, ये हमने अडॉप्ट करनी है। तो पहला, योर गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक, कि मुझे ये करना है। इट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से suppose I'm a businessman, and if I say that at the end of the day I need to have a sale of say 50,000 odd rupees, it is very specific that I want a sale of 50,000. As a student, आप अपना डेली का गोल सेट कर सकते हो कि मुझे शाम को 1 यूनिट मैथमेटिक्स का, 1 यूनिट साइंस का, 1 यूनिट फिजिक्स का, 1 यूनिट फलां सब्जेक्ट का मुझे ये कंप्लीट करना है। तो ये बड़ा स्पेसिफिक है कि मुझे इतना करना है, एंड यू शुड बी एबल टू मेजर इट। इसका कोई पैमाना होना चाहिए उसको मेजर करने का। जैसे अभी आपने कहा कि मुझे एक चैप्टर करना है। अब वो एक चैप्टर के अंदर 10 सब क्लॉजेस, 10 सब यूनिट्स हो सकते हैं, 10 सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि मैंने 2 सब यूनिट कर लिए, 20% कर लिया, 4 कर लिए, 40% कर लिया, 8 कर लिए, 80% कर लिया। तो जो मेरा स्पेसिफिक गोल था, मैं किस रेट पे आगे बढ़ रहा हूं, किस पेस पे प्रोग्रेस कर रहा हूं, वो प्रोग्रेस मेजरेबल होनी चाहिए। और जब भी हम गोल सेट करें अपने लिए, हम एक रियलिस्टिक और एक अटेनेबल गोल सेट करें। बहुत ज्यादा कई लोग, जब मैं ये बात करता हूं, कई लोग मेरे से थोड़ा आर्ग्यू करते हैं कि सर ऐसा क्या है जो नहीं अचीव हो सकता, आप मेहनत करो तो कुछ भी अचीव हो सकता है। मैं कहता हूं बिल्कुल हो सकता है। तो कहते फिर हम गोल ऐसा छोटा क्यों रखें? मैंने कहा मैंने छोटा रखने की तो बात ही नहीं करी। मैंने कहा है गोल अटेनेबल हो, अनरियलिस्टिक ना हो। उसका कारण क्या है? अगर हम कोई अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेंगे, हमें पहली बात उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वो अचीव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेशन आएगा कि यार मैंने ये सेट किया था, ये तो मुझे अचीव नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हम छोटे छोटे अटेनेबल गोल्स रखें। अगर एकदम से मैंने देख लिया कि मेरे को ये नहर पार करनी है जो कि 200 मीटर वाइड है, अगर एकदम से 200 मीटर के बारे में सोचने लगूंगा तो कभी भी नहीं पार कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मुझे रोज अपना स्विमिंग का स्टेमिना जो है वो 25-25 मीटर का बढ़ाना है, आज 25 मीटर करना है, कल 25 और करना है, परसों 25 और करना है, फिर 25 और करना है, तो शायद मैं उसको इजिली कर सकता हूं। तो यू हैव टू सेट स्मॉल अटेनेबल गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स which are challenging but they should be achievable, ताकि जब आप उसको अचीव करो तो आपको एक अगला लेवल अचीव करने के लिए मोटिवेशन भी मिले। एंड देन योर गोल शुड बी रेलिवेंट टू योर करियर, राइट? जो भी आपने अपना करियर प्लान किया उसके हिसाब से ही अपना गोल जो है वो सेट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्रोनिम इस पूरे स्मार्ट वर्ड में है वो है टी, टाइम बाउंड। अगर आप अपने गोल के साथ टाइम नहीं एसोसिएट करते तो फिर ये किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे ये एक चैप्टर पूरा करना है। कब तक करना है? आज करना है, कल करना है, या अगले महीने तक करना है? अगर आप वो टाइम नहीं अपना स्पेसिफाई करोगे तो ऐसे गोल का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? तो हमेशा लाइफ में बड़ा गोल तो सेट करना ही करना है कि मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, लेकिन उससे पहले हमें छोटे छोटे गोल्स की प्रैक्टिस करनी है। रोज रोज अपने लिए कुछ गोल सेट करो। एक होते हैं बहुत स्मॉल ड्यूरेशन गोल्स जो प्रॉब्ली 1 दिन या 2 दिन के टाइम होराइजन के हैं। एक है मीडियम टर्म गोल जो हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल जो आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो? तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो हमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म हर तरह के गोल सेट करने हैं और स्मार्ट तरीके से सेट करने हैं। नाउ वंस यू हैव सेट द स्मार्ट गोल्स, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव देम? अब उसको अचीव कैसे करना है, राइट? सो पहला स्टेप, राइट देम डाउन। जो भी आपने अपने लिए गोल लिखा है वो मन में नहीं सोचना है कि मेरा ये गोल है, उसको एक पेपर पे लिखो, और सिर्फ लिखो ही नहीं, उसको विजिबल बनाओ,
उसको अपनी अलमीरा के अंदर, अपने रूम के अंदर, अपने स्टडी टेबल के अंदर किसी ऐसी जगह पे पेस्ट करके रखो। आई सजेस्ट, आप स्टिकी नोट्स आते हैं मार्केट में, वो छोटे स्क्वायर शेप में शीट्स होती हैं, पीछे गम लगी होती है, कलर्ड शीट्स होती हैं, वो स्टिकी नोट्स लेकर आओ। उसके ऊपर अपना रोज का गोल लिखो कि आज शाम को मुझे ये करना है, और उसको अपने स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट कर दो, स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दो, ताकि सारा दिन आपको वो आपकी आंखों में पड़ता रहे कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। राइट? सो राइट देम डाउन, मेक देम विजिबल, क्रिएट एन एक्शन प्लान। अब वो जो गोल आपने सोच रखा है, अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसका अगेन एक एक्शन प्लान बनाकर रखो। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारी चीजें जो पीछे मैंने आपको दिखाई थी ना, एक स्लाइड अभी यहाँ पे, ये वाली, सॉरी नॉट दिस वन, प्रायर टू दिस, ये फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स। बहुत चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगी कि ये भी करना है, वो भी करना है, सबको छोड़ो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रखो। देन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं गोल को अचीव करने में, उनको प्रोएक्टिव होकर, प्रोएक्टिव का मतलब हमें पहले ही पता होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके लिए आपका समाधान पहले ही तैयार होना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने स्मार्ट गोल सेटिंग में टी बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जब आप स्मार्ट गोल अब आपने स्मार्ट गोल सेट कर लिया, अब आप उसको अचीव करना चाहते हो, तो ये जो फिफ्थ नंबर है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कॉर्पोरेट्स के अंदर, प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर हम इसको बहुत देखते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी ये बहुत बड़ी समस्या कई बार होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालने की आदत। चल आज नहीं, कल कर लेंगे, आज खेल लेते हैं, आज बाजार जा जाते हैं, कल कर लेंगे, कल आ गया, चलो अभी टाइम पड़ा है, एग्जाम्स के दिन पड़े हैं, परसों कर लेंगे। सो अवॉइड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। This is one of the worst habit that you are going to develop in your student life if you do not tackle it here only. और फिर जब ये हैबिट कॉर्पोरेट कल्चर में चली जाती है, तो वहां तो ये बहुत तंग करती है। Some of the senior colleagues are sitting in this meeting and I'm sure they will agree with me on this. This procrastination is one thing that we all need to just shunt out of our lives. Then the time management. दिन में 24 घंटे ही मिले हैं, सभी को 24 घंटे ही मिले हैं, चाहे वो न्यूटन था, चाहे वो आइंस्टाइन था, चाहे वो गांधी जी थे, कोई भी, मोदी जी हैं आजकल, सबके पास दिन में टाइम उतना ही है, 24 आवर्स। इस 24 आवर्स में से कैसे हम अपना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं अलग से एक पूरा सेशन लगा सकता हूँ, ये इतनी बड़ी एक डोमेन है। राइट? देन Excuse me, sir. Yes. Regarding the first point, write them down, make them visible. इसमें धीरज कुमार कह रहे हैं चार्ट में कि वो पर डे क्या क्या करते हैं, वो पूरा नोट डाउन करते हैं। ओके, देखो वो क्या करते हैं वो नोट डाउन करना, वो मुझे लगता है एक आफ्टर एक्सरसाइज है कि मैंने आज ये किया। राइट? गोल वो है जो मेरे को करना है बाद में, मतलब वो एक एडवांस एक्सरसाइज है। तो वो जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो आपको एक असेस करने में मदद मिलेगी कि आज के पूरा दिन में आपने क्या किया। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मुझे आज क्या करना है। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग you decide that this is what is I am going to achieve by the end of the day. तो वो जो टैग है वो सामने आप लगा कर रखिए। ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक तरह की एक फीडबैक एक्सरसाइज हो सकती है, एक कंट्रोल एक्सरसाइज हो सकती है कि मुझे ये करना था और उसके हिसाब से मैंने आज ये किया है। तो अब दोनों में गैप क्या है, कितना रह गया या कितना ज्यादा कर लिया, कितना कम हुआ या कितना ज्यादा किया, वो एक कंट्रोल लूप बन गई, एक फीडबैक लूप बन गई। तो उसका अलग पर्पस है, इसका अलग पर्पस रहेगा। बट इफ यू आर डूइंग दैट, हैट्स ऑफ, आई रियली अप्रिशिएट। उसके बाद सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। लाइफ में मेहनत करनी बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत का मजा लेना, सक्सेस का मजा लेना भी बहुत जरूरी है। तो जब भी आपने कुछ अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना सीखो। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, हमारी वर्कशॉप रिवार्डिंग करियर और
प्रॉस्परस पर्सनल लाइफ के ऊपर है। तो यहाँ पे जिंदगी की खुशी करियर के ग्रोथ से मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कुछ अचीव करते हैं उसको सेलिब्रेट करना मत भूलिए। सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं है कि हमें पार्टी वार्टी करनी है। इट कुड बी समथिंग, आई मीन जस्ट अ चिल ऑफ। शाम को आप फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, आप घूमने निकल गए, थोड़ा आउटिंग कर ली, थोड़ा टीवी देख लिया। यू डिसाइड हाउ यू वांट टू सेलिब्रेट, क्या करने से आपको खुशी मिलेगी वो कीजिए। जस्ट गो फॉर इट। देन रिमेंबर, रोड ब्लॉक्स आर नॉट फेलियर्स। लाइफ में गोल के पाथ पे चलते हुए बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी। बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। रिमेंबर, दीज आर रोड ब्लॉक्स, दे आर नॉट फेलियर्स। जस्ट स्टैंड अप, पुश अगेन, गिव योर बेस्ट शॉट वंस अगेन। पीपल विल क्रिटिसाइज यू मैनी अ टाइम्स, लेकिन उस क्रिटिसिज्म को आपने हेल्दी क्रिटिसिज्म की तरह लेना है। उससे अपना मन नहीं दुखी करना है। उस क्रिटिसिज्म में से अपने लिए मोटिवेशन ढूंढनी है कि मैं कैसे और बढ़िया कर सकता हूं। एंड एज फार एज पॉसिबल वर्क विद लाइक माइंडेड पीयर्स। पीयर टू पीयर लर्निंग आज की डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम इसको एज ए रेवोल्यूशन यूज कर रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा जब टीचर सेंट्रिक एजुकेशन होती थी, टीचर क्लास में लेक्चर देता है और बच्चे सुनते हैं। नो, अब तो हम बच्चों से सीखते हैं, बच्चे हमें सिखाते हैं और बच्चे एक दूसरे को भी सिखाते हैं। तो जो पीयर टू पीयर एजुकेशन का मॉडल है, ये बड़ा ही इफेक्टिव मॉडल है। आप अपने साथियों से, अपने जो सर्कल में से, अपने फ्रेंड्स से सीखो, लेकिन उसके लिए आइडेंटिफाई करो कि कौन से लोग आपको सिखाने में सक्षम हैं। सो वर्क विद लाइक माइंडेड पीयर्स, राइट? Now we all see that the Japanese people, they are very successful in terms of quality especially. अगर जापानीज प्रोडक्ट है तो हम आंखें बंद करके कहते हैं कि यार इसका तो क्वालिटी बढ़िया होगा, ये तो अल्टीमेट होगा, बिकॉज दे वर्क ऑन थिंग्स लाइक सिक्स सिग्मा। तो एक छोटी सी कहानी प्रचलित है, आई डोंट नो, आई मीन दिस अ मिथ, जस्ट अ फेबल, जस्ट अ टेल। वो कहते हैं कि एक बार किसी XYZ कंट्री ने जापान को टेलीविजन बनाने का ऑर्डर दिया, LED टेलीविजन का। तो उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख टीवी दे दीजिए और हम उसमें से 10 डिफेक्टिव जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जापान वालों ने जब वो टीवी बनाकर भेजे शिप पे, 10 लाख टीवी एक शिप पे भेजे और 10 टीवी अलग से एक बोर्ड पे भेज दिए। साथ में एक चिट्ठी लगा दी कि जेंटलमैन, आपने जो 10 लाख टीवी गए थे वो इस शिप पे हैं, ये आपने पता नहीं, हमें समझ में नहीं आया कि आपने वो 10 खराब टीवी क्यों मांगे हैं, लेकिन वो हमने आपके लिए अलग से खराब बनाकर अलग से एक बोर्ड पे भिजवा दिए। आपने, मुझे नहीं पता आपने इनका क्या करना है। तो कहने का मतलब ये कि क्वालिटी इज इन देयर ब्लड। These guys, they are so good at perfection, they hardly make anything wrong. Now what is the mantra behind their success, right? The first is ikigai. They say that the discover your purpose in life. हम किस लिए दुनिया में आए हैं, right? उस पर्पस को पहचानिए, right? जब हम उस पर्पस को पहचानेंगे तो हम अपने आप अपना टाइम उस तरफ यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। Finally, not finally, the second one is the Kaizen. Kaizen is a term in Japanese manufacturing culture. I come from mechanical engineering, so this is very close to my heart. They say that focus on small continuous improvements. कि आप हर दिन ये सोचिए कि मुझे कल से आज थोड़ा बेहतर करना है। आपका जो पैरामीटर होना चाहिए, वो मेजरमेंट का, वो प्रीवियस डे होना चाहिए कि मुझे कल से आज थोड़ा बेहतर करना। जस्ट थिंक ऑफ, अब साल के 365 दिन आपने कुछ नहीं किया, जितना पहले दिन थे उतना ही 365वें दिन हो, राइट? So if you see this, let me share something over here. Okay. I hope the word file is visible. Yes, sir. It's visible, right? So if I say that 1 So, raised to power 365, what will it be equal to? What will it be equal to? 1 raised to power 365.
कितना होगा? 1 year, sir. 1, only 1, राइट? तो हम जितना पहले दिन थे 365 दिन उतने ही हैं, लेकिन अगर हम रोज का 1% भी अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कर दें, 1% भी, 1.01 raised to power 365. Do you know what it will be equal to? जिनके पास कैलकुलेटर है वो जरा इसको उठाओ. This will be something like 37 point some value, right? So that means अगर हम सिर्फ 1% भी अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कर दें, तो हम साल के पहले दिन के मुकाबले 365वें दिन 37 टाइम्स इंप्रूव हो जाएंगे. तो ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका है कि अगर हम कुछ ना करें तो हम वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन अगर हम 1% भी अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कर दें तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, राइट? सो दिस इज द what is meant by this Kaizen. Kaizen refers to the very small improvements. एक छोटा सा वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं. We are into last 5 to 7 minutes of this session. So कुछ लोग अगर उनको लग रहा है कि see this 1990 ये फॉर्मूला रेसिंग है, और अब देखिए जो टायर चेंज करने में वो लगभग 9 सेकंड का समय लगा. 10 साल बाद 2000 में यही टाइम घट के 7.22 सेकंड हो गया, और 2010 में 4.12, 2020 1.82, और 2023 1.78. अब एक बार प्लीज इसको फिर से देखिए और बड़े गौर से देखिए, ऊपर ईयर देखिए और नीचे टाइम देखिए. Right. So what we were actually seeing is the effect of the continuous improvement. अगर आप कहें कि 1990 में इतना था और 2000 में इतना हो गया, और वो जो पूरी की पूरी इंप्रूवमेंट हुई वो 10वें साल जाकर हुई, तो ऐसा नहीं है. वो उन 10 सालों में धीरे धीरे 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड करके होती रही है, और 10 साल बाद आप देखो वो कितना मैग्नीफाई होकर आपको मिल रहा है. तो अगर हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, स्लोली स्लोली इंप्रूव करेंगे, तो चीजें बहुत बढ़िया होंगी. और तीसरा आता है पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, जब भी आप कोई काम करने बैठे, 25 मिनट पूरी फोकस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ काम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें. क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा देर पूरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं बैठ सकता. लेकिन जब आप वो 25 मिनट के साथ बैठे हैं, 25 मिनट के लिए बैठे हैं, तो उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपका पूरा का पूरा ध्यान उस तरफ होना चाहिए. दिस इज पोमोडोरो टेक्निक. देन हारा हाची, नेवर ईट फुल स्टमक. पेट को कभी भी 100% मत फुल करो. जब आपको लगे कि नाउ यू आर ऑलमोस्ट डन, अब आधी चपाती, एक चपाती की जगह बची है, तो वहां पे खाना छोड़ दीजिए. तो स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 80% फुल. दिस विल कीप यू एनर्जेटिक. दिस विल हेल्प यू मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, और आपको जो शरीर में हम बोलते हैं सुस्ती आती है, वो नहीं आएगी. और देन शौशीन, हमेशा अपना एंथुजियाज्म बरकरार रखिए.
कोई भी नया काम पकड़ते हैं उसको ऐसे समझिए कि मैं इसको लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, उससे उसकी वो क्यूरियोसिटी, वो जो सीखने का जज्बा वो बना रहेगा और उसको करने में आपको मजा आएगा। एंड फाइनली द वाबी साबी, embrace imperfection, nobody is perfect in this world my dear, only God is perfect। तो जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ 19-21 कमी भी रहती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। embrace imperfection, that is how the world is, everybody is imperfect, don't worry, don't stress yourself। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, आपको वो करना है जो आपको बताया गया है, उसके बाद रिजल्ट्स जस्ट लीव इट टू द ऑलमाइटी, रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी इन योर फेवर, डोंट वरी। So finally, 20 years from now, I always end my presentations on such quote, and this is the most beautiful and the most, this is the quote which is the closest to my heart. 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you did not do, rather than by the ones that you did. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream, discover। जो आपने किया उसका आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने नहीं किया उसका रिग्रेट ज्यादा रहेगा। तो आपको दिमाग में होगा कि शायद काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो वो रिग्रेट नहीं रखना है, वो अभी करना है। जो जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं उनके ऊपर काम करना है। एंड I don't find any reason why you cannot attain that goal of a rewarding career and a prosperous personal life। That is all from my side. Now I am very much open for your queries। Let me come back to the main screen। Yes, so I'll stop presenting. Here it is। Right, so I hope I did not bore you much। ज्यादा आपको बोर नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी अगर किया है तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। अभी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक दोस। I was given 1 hour and I believe I have taken exactly Before, 1 hour। sir, I would. सुनील सिंह has raised his hand। सुनील, आपका कोई सवाल? सर Yes सर please, पूछिए। हाँ जी सर, चीज़ों को जितने बार हम प्रैक्टिस करेंगे सर उतना हम लोग के लिए बेनिफिट है सर। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सक्सेस मिलने के चांस ज़्यादा रहती है सर। बिल्कुल सही है। यस, देखो प्रैक्टिस के साथ नो डाउट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी एक चीज और कहना चाहूंगा, खास करके जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल में हैं या अंडर ग्रेजुएशन में हैं, जब भी आप पढ़ाई करते हैं आप हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमें मेमोराइज नहीं करना है, हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है। क्या होता है कि हमारे माइंड में ना, अच्छा आपको मालूम है कंप्यूटर के अंदर 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती यस है सर। हार्ड ड्राइव और एक होती है रैम। ठीक यस है, सर। तो जनरली अगर आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का भी लैपटॉप होगा तो उसमें लगभग 16 जीबी की रैम होगी और कोई 512 जीबी का हार्ड ड्राइव होगा, राइट। अब उस 16 जीबी की जो रैम है उसमें से 8-7 जीबी तो ऐसे ही ऑक्यूपाइड रहती है जो बैक एंड पे सॉफ्टवेयर चलाने को रहती है। तो आपके पास बहुत कम मेमोरी है जो अवेलेबल है रैम की फॉर्म में, लेकिन हार्ड ड्राइव वो अबंडेंस में है। तो लाइकवाइज हमारे माइंड के अंदर यहाँ पे भी 2 मेमोरीज होती। एक मेमोरी वो है विच इज इक्वलेंट टू द हार्ड ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो आपके लैपटॉप की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। कितने हजारों जीबी की कैपेसिटी है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया, लेकिन बहुत बेअंत कैपेसिटी है। और एक दूसरी मेमोरी भी है जिसको आप रैम के
बराबर समझ सकते हो, जो कि बड़ी छोटी सी है। अब जब हम किसी चीज को क्रैम करते हैं, जब हम किसी चीज को मेमोराइज करते हैं, तो वो जाता है उस छोटी मेमोरी में और वो बड़ी जल्दी भर जाती है। अब उसमें कुछ और डालने के लिए पुराना निकालना पड़ेगा, फिर नया आएगा। हाउ मेनी टाइम्स दिस हैपेंस विद यू? आप शाम को पेपर देकर आए, मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या लिख के आए हो पेपर में, तो आगे से जवाब क्या मिलता है कि सर बस कर आए हैं जी, अब मत पूछो, पता है कर आए हैं, बात सही है, अब अगले पेपर की तैयारी करनी है। अब उसको फिर शाम को घूम फिर करके इसको निकालेंगे तो नया फीड करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हम मेमोराइज करते हैं, जो चीज हम रट्टा मारते हैं, उसका जो स्पैन ऑफ रिटेंशन होता है वो बहुत कम होता है। हमें पढ़ाई करनी है 60, 70, 80 साल के लिए, कोई 6-7 दिन के लिए नहीं करनी है कि आज पढ़ा और परसों पेपर दिया और अगले दिन भूल गए। इसलिए पढ़ाई नहीं करनी है। देखो 2+2 4 कब सीखा था? जब हम फर्स्ट क्लास में या नर्सरी में थे, लेकिन आज भी याद है। क्यों? क्योंकि 2+2 4 क्यों है, इसके पीछे हमने पूरा एक फंडा लगाया हुआ है। ये 2 है, ये 2 है, ये 1 2 3 4, ये 4 बन गया, तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन यही अगर मैं आपसे आपकी साइंस के सब्जेक्ट का कोई पिछला 1 महीना पहले ही पढ़ा हुआ कंसेप्ट पूछ लूं, तो शायद आप जवाब ना दे पाओ। क्यों? क्योंकि आपने उसको समझा नहीं, उसको क्रैम किया। तो जब हम क्रैम करते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसमें जाता है, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पढ़ाई करनी है तो चीजों को अंडरस्टैंड करके करो, ताकि वो परमानेंट मेमोरी में जाए, जो आज से 10 साल 20 साल बाद भी अगर हम रिकॉल करना चाहें, अप्लाई करना चाहें तो कर सके। और ये अप्लाई वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करने के हिसाब से पढ़ो, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ो। वॉट एवर यू आर स्टडिंग, try to apply it somewhere in your life, right? Then that automatically becomes a part of your structure. वो आपके दिमाग का एक हिस्सा बन जाता है और वो कभी भी नहीं भूलता। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो जो हमारी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो एक्टिवेट होती है। तो आई थिंक this is what I would like to respond to your statement. Yes, anybody else? हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। यस, अभियाल सर, आप कुछ पूछ रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी सर। अभियाल, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं नहीं, मुझे मेरी आपके पास नहीं जा रही थी, इस वजह से वो क्या है। अच्छा, अब बताइए बताइए क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, आप ही कुछ पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा, नहीं वो आपने ना हैंड रेज किया हुआ था, अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो मैडम आपका नाम ले रहे थे कि सुनील सिंह ने हैंड रेज किया हुआ है, तो शायद आपका कोई सवाल है, हमें ऐसा लगा। नहीं नहीं नहीं, मैडम का फोन आया इसलिए मैंने ज्वाइन किया था उसकी ऑल मीटिंग। ठीक है सर, कंटिन्यू। एनीबॉडी एल्स? या सर, आप जो 6 तरीके बताए जापानीज के तरीके, जो उनमें से एक था कि 25 मिनट काम करो और 5 मिनट ब्रेक लो। यस, तो ये मतलब बाद में थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि 25 मिनट की काम तो हो जाती है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ। और जो 5 मिनट का ब्रेक होता है ना, वो कभी-कभार 15 मिनट 20 मिनट ऐसा लंबा खींच जाता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बैठने के बाद तब ये रिग्रेट हो जाता है कि यार मैं 15 मिनट और थोड़ा वेस्ट कर लिया। तो उसके वजह से ना अगला 15 मिनट वो थोड़ा दिक्कत होती है। देखो उसकी देखो क्या होता है, आई गॉट योर पॉइंट। देखो क्या होता है कि पहली चीज तो ये कि जब हम इस तरह की कोई आपको फिगर्स देते हैं ना कि हाँ 25 मिनट ये और 5 मिनट ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने 25 मिनट ही करना है। अगर आपको आपका कंसंट्रेशन लेवल 45 मिनट 1 घंटा अलाउ करता है तो आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इंडिविजुअल फैक्टर है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो लोगों का कंसंट्रेशन लेवल है वो 25-30 मिनट के बाद थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ग्राफ जो है उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि उस नीचे वाले ग्राफ पे काम करने की बजाय आप वहां पे एक ब्रेक ले लो, और ताकि आपका ग्राफ फिर से ऊपर ही रहे, हम उस नीचे वाले ग्राफ पे काम ना करें। तो पहली बात तो आप अपने आप को असेस कीजिए कि अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल 30-35-40 मिनट तक बना रहता है तो आप 25 मिनट की जगह 40 मिनट पे जाके ब्रेक लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज जो आपने कहा कि वो 5 मिनट की ब्रेक एक्सटेंड हो जाती है, तो लाइफ में सबसे जरूरी चीज जो है वो है सेल्फ डिसिप्लिन।
अगर हम डिसिप्लिन होंगे, अगर हम अपने आप को ये चीज रिमाइंड कराएंगे, और अगर हमारे ध्यान में वो हमारा आज के दिन का स्मार्ट गोल है कि मुझे शाम तक ये करना है, और वो टाइम बाउंड है, उसमें टी फॉर टाइम था, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ रही है तो सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो शाम तक वो गोल अचीव नहीं होगा, और गोल अचीव नहीं होगा तो फिर हमारी ये सारी एक्सरसाइज जो जो हम कर रहे हैं, फिर उसका फायदा नहीं। तो हमें तो ये गोल सेटिंग को एक हैबिट बनाना है। डेली का डेली इसलिए बोल रहे हैं कि डेली डेली करोगे तो वो चीजें अपने आप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब बन गए। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली किसी चीज को अडॉप्ट करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा यार ये तो कोई एक बर्डन है, ये तो कोई हमें कह रहा है करने को। तो मैंने ये नहीं चाहता कि आपको कोई कहे और आप फिर करो। मैं ये चाहता हूं कि वो चीज आपकी जिंदगी का ही एक हिस्सा बने। उसको हिस्सा बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और उसको हैबिचुअल होना पड़ेगा उस चीज को करने के लिए, और उस हैबिट फॉर्मेशन के लिए हमें वो चीज रोज करनी पड़ेगी। और जब आप कोई चीज रोज लगभग 40-45 दिन के लिए कर लेते हो डेली बेसिस पे, तो फिर वो छोड़नी मुश्किल हो जाती है, फिर वो हैबिट बन जाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, आप सुबह वॉक करनी शुरू कर दो 5 बजे उठ के। 1 महीना बड़ा मुश्किल लगेगा, 1 महीने बाद अगर छोड़ दोगे तो ज्यादा मुश्किल लगेगा। सारा दिन बेकार जाना शुरू हो जाएगा, यार आज आज बड़ा डाउन डाउन लग रहा है, आज बड़ा अपसेट लग रहा है। तो पहला महीना बड़ा मुश्किल है, बट इफ यू डू इट फॉर 40-45 डेज इट बिकम्स अ हैबिट, फिर वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यस, एनीबॉडी एल्स? क्या बात, सवाल नहीं है? सवाल दो ही सिचुएशन में नहीं होते, या तो हमें सब कुछ समझ में आया या हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो सेकंड कैटेगरी में तो नहीं है हम। because if that is the case then I consider it as my failure। मुझे लगता है कि मैं आपको शायद अच्छे तरीके से अपनी बात कह नहीं पाया। नो सर, ऐसा बात नहीं सर। So do we have more queries or shall we go for the closure? Angelina ma'am, are you there? Sir, I would like to say that Saran sir is also there. He's a senior mentor who has also gathered with us today in this Yeah, in fact, webinar. I would welcome him, sir. I would love to hear And from the senior mentors and those senior people। rather मैं उनका थोड़ा फीडबैक भी लेना चाहूंगा और उनसे कुछ सीखना भी चाहूंगा कि कैसे हम कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं इस एक्टिविटी में, या कैसे इसको बच्चों तक और बढ़िया तरीके से पहुंचा सकते yes, हैं। sir. So I will be honored and blessed if somebody is there to give me some tips on this। Yes। Mr. Uday, I think he wants to say something. Yes. Yeah, Mr. Gaurav, you really very nicely, succinctly uh, explain the whole thing and give the perspective, and it's really very practical. We have seen, we have experienced, and I feel that I have an executive coach before me, as we used to have. I mean, I was the chairman of a company, and we used to have such like NLPs and all those kind of coaches. So very nice, and it really, I mean, the time management, as you said, that you have hinted to that. All these things depends on, I mean, how smartly you do, how smartly you set the goal, how smartly you manage your time, how smartly so that with minimum effort you get the maximum output and get the focus. So very well explained. It will be very practical for the aspirants, for the students who are going. So thank you very much. Thank you for the endorsement, Yeah. sir. Thank you very much. Thank you. So, Saran Saab, good evening. Angelina, is Mr. Saran there? Yeah. Yes, sir. yes, sir. Saran Yes, Saab, sir. good evening. Yeah. Actually, I fully endorse what our friend Mr. Uday has Good said. evening, everyone. It was nice session, actually.
our Oh yeah, school. Rasmi ji, namaskar. Yeah, very nice. Namaskar, Very namaskar, nice. bhai. Yes, yes. रश्मि आप बोल रही है कुछ? No, it was Good evening, really ma'am. nice for our students. They really need these types of counseling and guidance for the studies. हम समझते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे टारगेट ग्रुप के लिए ये बहुत उपयोगी रहा होगा। आप लोग एंजॉय किए होंगे। मैं थ्रू आउट थी, मैं सुन रही थी और सर ने बहुत अच्छे से आप लोग को गाइडेंस दिया और आई थिंक आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी आप लोग के स्टडीज। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ इस संस्था की। थैंक यू Thank you, बच्चे। ma'am. Thank you for the kind words. Thank you. गौरव जी को मैंने सुना, बहुत ही साउंड एडवाइसेस उन्होंने दिए हैं, बड़ा सिस्टमेटिकली उन्होंने प्रेजेंट किया है और एक्शन प्लान भी बताया है। और छोटे छोटे एक्शन प्लान अगर स्टूडेंट्स पिकअप करते हैं तो उनके लिए सब फायदेमंद रहेगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा, ये सारे इनपुट्स जो इन्होंने दिए हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं वैलिड है, ये हम सब के लिए वैलिड है। एंड थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैव टू बी अ लर्नर एंड सो दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव आवर सेल्फ एवरी डे इवन बाय अ बिट। कल जो हमने किया था आज उससे कुछ बेहतर इंसान बने, बेहतर कुछ काम करें जो जिस फील्ड में हमारी इच्छा। अदरवाइज हम लोग भी अनकरेंट हो जाएंगे और ऑब्सोलीट हो जाएंगे अगर हमने इम्प्रूव नहीं किया, अपने आप को करंट नहीं रखा। देख रहे हैं कि साहब दुनिया आगे बढ़ रही, बड़ी स्पीड से चल रही है आगे, तो कम से कम हम थोड़ा बहुत तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए एट ऑल स्टेजेस। आपका पर्पस ऑफ लाइफ केवल जॉब पाना नहीं है, लाइफ में आपको हमेशा आपको एक आनंद का अनुभव करना होगा एंड दैट कैन कम फ्रॉम व्हाटएवर मिस्टर गौरव हैज वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। और हर एक चीज़ को मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इनका कुछ एक प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और अगर इनके साथ शेयर कर देंगे so that they can keep it as a kind of Bible type सी चीज़ कि हाँ साहब ये हम कर सकते हैं। और एक्शन पॉइंट नॉट ओनली द ये बड़ी अच्छी बातें हैं। और जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है वो ये है कि डिसिप्लिन बनाओ। हैबिट कम्स ओनली आफ्टर यू बिकम डिसिप्लिन्ड। आप डिसिप्लिन रहोगे तभी हैबिट बनेगी, तभी आप सिंसियर भी हो सकते हो। अनलेस अनटिल यू आर सिंसियर ये सारा जो आपका ये सब केवल बुकिश रह जाएगा अदरवाइज। तो एक्शन में लाना होगा सब कोई को। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, दो बात और है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसा अब आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाटएवर मिस्टर गौरव हैज शेयर। आप जो काम करें उसकी आप ऑब्जेक्टिव देखो कि क्या क्यों कर रहे हैं, आखिर हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। एक मीटिंग हमने होल्ड करी, अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई है, या हम पढ़ने जा रहे हैं, या हम मूवी देखने जा रहे हैं, फलाना मूवी देख रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरटेनमेंट है, ज्ञान प्राप्त करना है, दोस्तों के साथ परिवार के साथ समय बिताना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होना चाहिए, चाहे आप कोई काम करें तो आप हमेशा उसको करें। और टाइम मैनेजमेंट की बात उन्होंने की है, बहुत अच्छी बात है। और फिर एक चीज़ और उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि आप फेलियर से घबराइए नहीं, इम्परफेक्शन से डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ फेलियर। बहुत अच्छी बात सब रही, मतलब मैं क्या बताऊं इसमें। और लास्ट में जो अभी एक क्वेश्चन उन्होंने बताया कि साहब आप काम करते रहोगे, काम करते, इसमें जब तक आप डायरेक्शन नहीं लोगे तो नाव का जो चप्पू चलाते हैं ना, आप चप्पू चलाते रहोगे, केवल मेहनत करते रहोगे तो नाव आगे नहीं जाएगी, वो वहीं पर घूम घूम करके रह जाएगी। यू मस्ट हैव ए रडर। रडर यानी उसमें एक पतवार जो होता है जिसको कहते हैं, जिससे वो नाव का डायरेक्शन मिलेगा, वो डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज केवल आप चप्पू चला करके नाव वहीं का वहीं रहे। ये बातें आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम सब के लिए है और फॉर एवरीडे लाइफ। आई मीन दीज आर वेरी प्रोफाउंड थॉट्स दैट हैव गैदर्ड फ्रॉम दिस एंटायर सेशन। थैंक यू सो मच गौरव जी, बहुत अच्छा रहा एंड बहुत बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। Thank you for the kind words, sir. Thank you very much. Good afternoon from Dublin, everybody. Hi, good afternoon. Good afternoon, Colonel Ashok. Good I'm afternoon. Colonel Ashok. Actually,
Gaurav ji, The really sky awesome. behind you is looking so nice. It's a very pollution-free state. So thank you so much. I listened to you very carefully. I was in a family visit, so I came out. Only everything you have summarized so well. But one of the Harvard research says बच्चों के लिए है कि जब एम लिखते हैं 3% लोगों ने जिनसे लिखा है, जिन्होंने अपने पीयर को बताया है और बार बार याद किया है, तो एमबीए में रिसर्च हुआ है वो 97% से 10 टाइम्स उनका अचीवमेंट ज्यादा है. सेकेंडली दी नॉलेज और प्रैक्टिस में आपने सारा डिफाइन कर दिया है. तो मैंने भी देखा है कि जी प्रैक्टिस ओवर रूल कर देता है कई बार बच्चों के लिए है. वो नॉलेज के साथ साथ तो बहुत ही दूसरा शॉर्ट एनालिसिस आपने बहुत अच्छा किया है. सारे दुनिया में पढ़ाया जाता है. सो आपने जो चैलेंजेस को चांस में बदलने की बात कही है, बच्चों को बहुत ही ध्यान रखना होगा. और यही सार है. थर्डली है टाइम की दुनिया में जो भी काम करेंगे, जब भी हम स्मार्ट का सब डिफाइन कर दिया आपने, तो स्मार्ट में लास्ट है टी, टाइम. सो टाइम के अंदर ही कर पाएंगे. वो गोल हमने अचीव करने के लिए अपने अंदर ढूंढना है और उसको बैकवर्ड काउंट करना है. बच्चे इसको हमेशा ध्यान रखें. विदाउट टाइम वो ओपन एंडेड नहीं हो सकता कुछ. थैंक यू सो मच. दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू. Thank you, sir. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you for your kind Thank words. you, sir. Anurag, Thanks for taking time Yeah. out of your schedule. Thank you. are on a family visit and still you managed some time out of it. Thank you very much. Honored. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Baba. Thank you, Gaurav Bye-bye. ji. I'm Anurag this side. I'm also one of the mentor and the member of strategic team. So really appreciate जो आपने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया. और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं इस डिस्कशन में, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप बाहर कहीं पर भी ऐसी ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको हजारों रुपए खर्चे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग मिलती है. ओके. और हम जब ये ट्रेनिंग्स कॉर्पोरेट में अरेंज करवाते हैं, हम खुद लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तो बहुत मैटर करती है. हमें मतलब आप लोग प्रिविलेज्ड हैं. मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, आप लोग प्रिविलेज्ड हैं कि ऐसी ट्रेनिंग आपको मिली. तो जितना आप इससे सीख सकते हैं, कोशिश करिए उससे ज्यादा से ज्यादा सीखिए. 2-4 चीजें मैं भी इको करता हूँ. सरन सर ने बोला, उदय सर ने बोला एंड कर्नल साहब ने बोला कि प्रैक्टिस जो आप लोग बात करते हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल आपने कल देखा होगा. एक रेसलर है हमारे इंडिया का, अमन शेरावत नाम है उसको ब्रोंज मेडल मिला है. आपको पता है इस ओलंपिक से लेके अगले ओलंपिक तक वो 1500 दिन प्रैक्टिस करेगा. 1500 दिन रोज टाइम पे उठेगा, टाइम पे प्रैक्टिस करेगा, टाइम पे सोएगा, फिर उठेगा. और वो उसका जो मेडल होगा, जो उसका जो एक एग्जाम होगा ना, वो सिर्फ 7 मिनट का होता है. 7 मिनट मैक्सिमम. मतलब पूरा मैच तो 6 मिनट का होता है. अगर टाई होता है तो वो आगे जा सकता है. तो 1500 दिन वो कोशिश करेगा और खेलेगा सिर्फ 7 मिनट. अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आप कितने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं. चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, आप पढ़ाई करेंगे रोज. 1.5 घंटे का एग्जाम जो है वो आपका फ्यूचर निर्धारित करेगा. तो उस 1.5 घंटे के एग्जाम में आपको बेस्ट देने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ेगी. और आप रोज मेहनत तभी कर पाएंगे जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे, जब आपके अंदर अनुशासन होगा. सुबह 7 बजे उठना है तो सुबह 7 बजे उठना है, बात खत्म. उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है. कोई प्लान भी नहीं है आप लोगों के लिए. प्लान ए ही काम करेगा, प्लान बी है ही नहीं. चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप खेल में जा रहे हैं, जब तक आप एक स्टेज पे नहीं पहुंच जाते जहां पर आप अपने परिवार का, खुद का ख्याल रख सकें, स्टूडेंट्स के लिए प्लान भी नहीं होता है. ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, बट मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ प्लान ए ही होता है और वो है डिसिप्लिन. बात खत्म हो जाती है. एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गौरव सर ने बताया, आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस कहाँ है, क्योंकि वही आपको गाइड करेंगी. आपसे ज्यादा कोई अच्छी तरीके से नहीं जानता कि आप बैंक पीओ का एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे. और अगर आपको बैंक पीओ का एग्जाम देना है, अगर आपको एसएससी में जाना है, आपको यूपीएससी में जाना है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, कितनी पढ़ाई करनी है, कितना मेहनत करना है. वो सारा का सारा आपको, ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो ग्लोबली पढ़ाई जाती है. बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं. हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका शॉर्ट एनालिसिस होता है बिफोर किकिंग दैट ऑफ. तो ये बेसिक चीजें जो सर ने बताई हैं, आप प्लीज इस पर जरूर फोकस करिए. बहुत काम किए हैं. एंड थैंक यू सो मच गौरव सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया.
जो आपके बताने का तरीका है वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली था, वो मैं कहता हूँ। ये बड़ी-बड़ी बातें बहुत लोग क्या होता है गड़बड़ा जाते हैं, मतलब वो नहीं बता पाते कि उनको लगता है कि उनको पता ही होगा। आपने वो बहुत ध्यान रखा है हमारा ऑडियंस का कि हमारी ऑडियंस कैसी है, वो कितना ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। So thank you so much. That's from my side. Thank you. Thank you, Mr. Anurag. Thank you for your kind words. And yes, I'll just like to extend what he has said. प्लान ए और प्लान बी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप प्लान ए और उसके बाद प्लान बी और प्लान सी और फिर प्लान डी, अगर इस तरह आप प्लान्स रखोगे तो बिलीव मी गाइस, जो आपने लास्ट में रखा है वहीं जाके गिरोगे, वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। लाइफ में जो एक आपने टारगेट रखा है बस वही टारगेट होना चाहिए। डोंट गो फॉर एनी प्लान बी, सी और डी। जब भी हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं तो वो जो लास्ट ऑप्शन रखी होती है ना, फिर वहीं पे आके अपने आप, क्योंकि हमारा माइंड हमें गाइड कर रहा है कि यार चलो आज ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा। तो वो जो हमने लोएस्ट रखा है वहीं पे जाके हम सेटल हो जाएंगे। तो इसलिए जो बड़ा सोचो और बस वही सोचो और कुछ मत सोचो। थैंक यू। राइटली सेड सर। I would like to thank all the mentors who have gathered here today, especially Saran sir, Uday sir, GP Sinha sir, Amar sir, Ashok sir, Anurag sir, and our managing trustee Rashmi ma'am, who have gathered in this webinar. And lastly, I would really like to thank Gaurav sir for such an insightful webinar. And हमें यकीन है कि सभी उपस्थित बच्चों को इसका बहुत लाभ हुआ होगा। एंड आपकी एक्सपर्टीज और आसान भाषा में समझने के अंदाज ने कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को भी समझना आसान बना दिया है। So we would really like to present a token of appreciation as a form of a digital memento, sir. Thank you, ma'am. Thank you. And आपको अर्थ केयर फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank अर्थ केयर फाउंडेशन के us today. And our mentors, our strategic team members, and of course, are all the students who have gathered here today. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you, Angelina, for that closing remark. Lastly, Thank you, everyone. Thank you, sir. okay. Okay, so thank you everyone for joining. सर जाते जाते सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के वेबिनार के लिए। सर आपने जिस तरीके से, जैसे अनुराग सर ने भी कंक्लूड किया, जिस तरीके से आपने एक इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करके हमारे बच्चों को समझाया है, हमारे स्मार्ट गोल्स का जो ब्रेकअप करके आपने बच्चों को जिस तरीके से गाइड किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिस वेबिनार विल ऑल्सो बी प्रेजेंटेड, हैज बीन रिकॉर्डेड एंड इट विल बी शेयर्ड विथ आवर स्टूडेंट, जो कि आज अनफॉर्चुनेटली अपने अपने कुछ नेटवर्क चैलेंजेस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। एंड वी वुड आल्सो लाइक टू थैंक आवर सीनियर मेंटर्स, हमारे और हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी मैम का स्पेशल धन्यवाद फॉर मेकिंग इट पॉसिबल, जिसकी वजह से आज हम ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं। और साथ में हमारे स्ट्रेटेजिक टीम मेंबर अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने इनकैप्सुलेट किया कि जो वेल्थ ऑफ नॉलेज आज आपने शेयर किया है सर, उसके लिए बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ये वैल्यूएबल लेसन्स होते हैं, जिसको आपने सिंपली हमारे बच्चों के लिए एक तरीके से इनका प्रिविलेज था कि आज वो ये लेक्चर अटेंड कर पाए। थैंक यू सो मच सर। Thank you, everyone. Thanks for your time. Thank you everybody.